Great morning, my dear friends. Bhupesh Anand. Today we have covered two lectures in this, chapter. So today is my third lecture, and I am on learning outcome A. Learning outcome A ही discuss कर रहे हैं बेटे. What are the different forms or how we can divide the formally organizational structure can be of how many types. Hope you have enjoyed last two lectures. Today we will be starting with third lecture, and that too I have to discuss the two structures जो remaining रह गए थे बेटे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. आइए बेटे, थोड़ा सा आप अपना जल्दी से, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी प्लीज रजिस्टर ओपन कर लीजिए. और आप सब जो दूर से देख रहे हैं, जो मेरे से दूर हैं बट दे आर नियर टू मी ओनली, प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स. ग्रेट मॉर्निंग. AB अकाउंटेंट इन बिजनेस F1 की हम बातें कर रहे हैं. लर्निंग आउटकम A, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. यू हैव टू प्रिपेयर योर क्लास नोट्स. आपको अपने क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे. दिस विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो आइए, in the last two lectures I have told you that there are 5 types of organizational structures. Each has its own merits and own demerits. So today we'll be covering with those remaining two structures. I have told you one is entrepreneurial organizational structure, second is functional or departmental organizational structure, third is divisional organizational structure, and within division we can have on the basis of customers, on the basis of products, on the basis of geographical locations, and the fourth one is matrix organizational structure, and the fifth one is today that we will start with borderless structures. And within borderless we have modular, we have hollow, we have virtual. तो बेटे आजकल जो चल रहा है ना, बॉर्डरलेस बड़े फेमस हैं, बिकॉज MCQs में भी फेमस और रियल लाइफ में भी बड़े फेमस हैं. तो आइए लेट्स स्टार्ट विद दिस. पहला पॉइंट, आप सभी ने यू नो दैट लर्निंग आउटकम ए डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बी स्ट्रक्चर्ड. ये एक बार आपने लिखा है, फिर भी यू कैन राइट डाउन. एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, डिविजनल, ये बेटे तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं. And now I will be starting with this, and then I will be starting with this boundaryless. Okay, so this is the chart which we have prepared in last lecture too. Types of organizational structure: entrepreneurship, functional, departmental, divisional, within divisional, matrix, and boundaryless. Okay, so we are into these two. So let's start our journey. My dear friends, in the last two lectures specifically, मैं आपसे ये कहूँगा, आप सब ने रजिस्टर ओपन कर लिया. प्लीज अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है. हाँ, प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें. आप भी करें बेटे. हाँ, बहुत बढ़िया, आपने ओपन कर लिया है. आप सब जो पीछे बैठे हैं मेरे सामने, बेटे आप सभी को रजिस्टर ओपन करना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है. एंड इवन दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग मी ऑन दिस यूट्यूब और दे हैव परचेज पेन ड्राइव लेक्चर्स, प्लीज आप जस्ट एक बार आने वाले 5 मिनट को बड़ा ध्यान से सुनना है, बिकॉज I will be discussing with the logics. पेन्स नीचे रख दीजिए. ये देखिए, मैंने भी अपना पेन नीचे रख दिया. आपको भी कुछ नहीं लिखना, मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा. बस आने वाले 5 मिनट हम कंसेप्ट को डेवलप करेंगे. वी विल डिस्कस विद द कंसेप्ट, we will play with the examples with the concept, and once we are clear with the concept, then we can switch over to handwritten slides, and then we will be going to Google Baba, and then we can revise with the help of PowerPoint slides. So my first point to you is, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलोकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बेटे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करना डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म में. When I say entrepreneurship, one is the owner and उसके नीचे there are employees, and there is a direct contact between owner and the employees. Second is functional. When the organization grows some bigger,
then they have to prepare separate different departments. And this type of organization structure is best for those companies who are manufacturing one or two products, not more than that, because it will be giving you a complex structure in that case, because it has some positives, it has some negatives. Okay, so when I say functional, I mean this is a director, this is a manager, this is a manager, and then they have different types of production manager, sales manager, and marketing, etc. The third structure, when I say the third structure, which we have discussed in the last lecture, that is divisional matrix structure, divisional organization structure. When I say divisional, it means we can prepare division on the basis of regions, we can prepare the division on the basis of customers, we can prepare division on the basis of products. We have discussed iPad, iPhone and MacBook. I have जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं, मैट्रिक्स एंड बाउंड्रीलेस. आइए सर, मैट्रिक्स की बात करें. व्हेन आई से मैट्रिक्स एज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू. अगर मैं फंक्शनल और डिविजनल, बेटे इफ आई मिक्स फंक्शनल एंड डिविजनल, अगर मैं फंक्शनल और डिविजनल दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स करके एक न्यू स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता हूं, इफ आई प्रिपेयर अ न्यू स्ट्रक्चर, देन द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर विल बी अ मैट्रिक्स, बिकॉज उसका जो शेप आएगा दैट विल बी जस्ट लाइक मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स में क्या होता है बेटे, आपको पता है, देयर आर सम रोज, बेटा रोज होती है, एंड there are some columns. In a matrix it is a mixture of rows and columns. For example, if there are 4 rows and there are 3 columns, तो हम कहते हैं उसको 4/3 मैट्रिक्स. थोड़ा सा याद है मैथमेटिक्स में, you must have done it, बट इसको हम बोलते हैं 4/3 मैट्रिक्स. So similar logic we will be following here. When I am mixing the departments as well as the division, बेटा जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं, I want to get the benefit of both functional and division, then that is named as matrix structure. For example, this is board of directors, these are the directors. बेटे डायरेक्टर्स के नीचे मैंने कीप कर दिया, मैंने कहा दिस पर्सन इज नेम्ड एज जनरल मैनेजर, ठीक है, एंड बिलो दिस जनरल मैनेजर बेटे मैंने क्या किया, आई हैव प्रिपेयर्ड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फंक्शनल हो गया, एंड प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. जैसे इन द लास्ट लेक्चर मैंने एप्पल की बात की थी, तो मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं तो आईफोन एक प्रोडक्ट बन गया, आईपैड एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया, मैकबुक एक तीसरा प्रोडक्ट बन गया. इट मीन्स व्हेन आई मिक्स functions as well as product, it means when I classify my structure in such a way that if I see from one point of view, I can have functional classification, and if I see from another point of view, from second angle, I have customer or geographical type of classification. Now the person, let me firstly prepare the structure so that you can get an idea. But now this structure will be like this. This person who is manufacturing iPad has to report to the production manager, as well as to the manager of this product, because there is a manager of this product and there is one production manager, and this person who is actually involved in production of iPads. Now this person has to make double reporting. First report उसको करना पड़ेगा उस प्रोडक्शन मैनेजर को एज पर द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, और बेटे सेकंड रिपोर्ट उसको करना पड़ेगा आईपैड का जो मैनेजर है. Similarly, a marketing person has to report to the iPad manager as well as to marketing manager head. Thirdly, this person has to report to the product manager, that is iPad manager, and to the accounts manager. It means double work होगा बेटे, work will be doubled. Duplicacy of work will be there because a person has to go for this and then for this. No doubt,
आइडियाज आने वाले हैं, ओपिनियंस आएंगी, इट विल बी अ बेटर वे, बट स्टिल ही हैज टू डिस्ट्रीब्यूट, यू नो, ही हैज टू टेक द रिपोर्ट ऑफ दिस पर्सन एज वेल एज दैट पर्सन. ठीक है. नाउ देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, देयर कैन बी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ऑल्सो, देयर कैन बी इनएफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑल्सो. वो सब होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. But there are some positives and some negatives. I am just talking of MacBook. Supposedly, the manager who is producing MacBook has to report to the MacBook manager as well as to the production manager. जो व्यक्ति, जो भी पर्सन यहाँ पर मैकबुक बना रहा है या जो मार्केटिंग का है, उसको एक तो मैकबुक के मैनेजर को रिपोर्ट देना पड़ेगा, और सेकंड टू द मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. थर्ड इज the person who is accounts, you know, has to report to the product manager, that is MacBook manager, and to the accounts department. It means उनको डबल रिपोर्ट देना पड़ेगा बेटे. अब आप में से बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे ने तो बिल्कुल ही हिम्मत ही हार दी, उसने कहा सर ये कैसा स्ट्रक्चर है. बेटे दिस इज अ मिक्सचर ऑफ, जैसे आपने खेला था कभी सांप सीढ़ी खेली है बेटे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शंस as well as it is a mixture of, you know, divisions. तो दोनों के बेनिफिट हमें मिल सकते हैं. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आज हमें करना है. बट इसके बाद में एक स्ट्रक्चर लास्ट बताने वाला हूं जिसको हम कहते हैं बॉर्डरलेस. बेटे आजकल आपको पता ही है वर्चुअल ऑफिसेस की बात हो रही है. आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, देर आर सो ह्यूज ट्रैफिक, लॉन्ग डिस्टेंसेज आर देयर. तो सम पीपल दे आर सिटिंग इन द बरिस्ता, दे आर सिटिंग इन, यू नो, कैफे कॉफी डे, और पूरा अपना वर्क वहीं से लैपटॉप के थ्रू इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं. तो बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शंस, बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आई हैव 3 कैटेगरीज जो मेरे को डिस्कस करना है. एक तो होती है बेटे हॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, second is virtual organizational structure, and third is modular organizational structure within borderless. बेटे hollow क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इन दिस आई विल डिवाइड द एक्टिविटीज इनटू 2 पार्ट्स. बेटे कुछ एक्टिविटीज होंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, आई विल नेम देम एज कोर एक्टिविटीज, and there are some activities which are named as non-core activities. For example, आप ये टॉपिक कर रहे हैं accountant in business. Out of these 25 chapters, some chapters are very important. वो तो आप 100% अच्छी तरह से करके जाओगे. And some chapters are not so important. I can say that is non-core. We will give second preference to them, or we will outsource to them. फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ. मारुति इज मैन्युफैक्चरिंग अर्टिगा और अ वैगनार. अब इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग अर्टिगा और अ वैगनार देयर कैन बी सो मेनी एक्टिविटीज विच कैन बी देयर. नाउ वी कैन डिवाइड दोज एक्टिविटीज इनटू 2 पार्ट्स. एक तो कोर एक्टिविटीज, बेटे आप सब ध्यान से देखें, एक हो सकती है कोर एक्टिविटीज और दूसरी हो सकती है नॉन कोर एक्टिविटीज. कोर क्या होती है बेटे आप बताएं, कोर का मतलब क्या समझते हैं? Core means very important activities. For example, in manufacturing a car, can you tell me, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक कार को बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती होगी? बेटे पहली बात तो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते होंगे, बेटे इसका मॉडल बनाते होंगे, और इस स्ट्रक्चर में कुछ स्टील वगैरह यूज करते होंगे, बेटा इंटरनल डिजाइन करते होंगे, टायर्स होंगे, बेटे बैटरी होगी, बेटे लाइटनिंग सिस्टम होगा. ऑल दैट समथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ कार. नाउ इन दिस कैन यू टेल मी which activities are very important and which activities are not so important? The model of the car, the shape of the car, the design of the car, and the material which you are using for preparing the outer structure of that car, that is very important. So I will say that is a core activity. Once that has been completed, you know, by just fitting tires is a non-core activity. Fitting battery is a non-core activity. So Maruti can buy batteries from Exide, from any other company, or they can outsource the work to any other company, and they can also outsource the work of tires to Apollo Tires or to Dunlop Tires or to CA Tires. बेटे वो काम आगे डेलीगेट कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं. तो मारुति क्या करेगी? अपना मेन ध्यान
or the main focus will be on the design, on the outer structure, on the internal design, and Maruti will not spend time on tires or on battery. बेटे वो तो सिंपल है, लाना है फिट एंड फिक्स एंड फिट वाली बात आ जाती है. So I can say that this type of structure is named as hollow structure when the activities are divided into two parts. One is core and second is non-core. आप सब ने अभी लिखना है, अभी just have a look on my understanding. मैं जो examples दे रहा हूँ आप उसको जरा सोचिए. Now that can be used anywhere. Dell computers, आपको क्या लगता है Dell computers they are manufacturing their laptops? नहीं बेटा, they are giving to China. Now they have divided their activities into two parts. एक तो core activities for manufacturing a laptop and second is non-core activities for manufacturing a laptop. Now what is a core activity? The outer design, the internal chip, etc., etc. There are so much activities which are involved in manufacturing a laptop. And there are so many other non-core activities which are involved in manufacturing a laptop. So they will outsource those non-core activities to China and they will manufacture themselves those core activities. तो बेटे इसमें कोई roles responsibilities नहीं होती इसमें. This type of structure is named as hollow organizational structure. Similarly, if I say because in borderless there are three. One is hollow, second is virtual, third is modular. When I say virtual organizational structure, but a bada famous है आजकल virtual organizational structure. If you see, Google is following sometimes in some cases virtual organizational structure. Amazon, Flipkart, all these online companies they are following virtual organizational structure as per which they outsource. They have different contracts and they outsource some contracts to different companies. It means it is a jungle of different contracts. Amazon is a parent body and there are so many other different small organizations with which they have, उनके साथ उन्होंने क्या किया हुआ है बेटे, एग्रीमेंट किया हुआ है. तो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने बड़े सारे डिफरेंट लोगों से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दैट इज नेम्ड एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. और बेटे लास्ट है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. आप सभी मोबाइल फोन जो यूज कर रहे हैं Xiaomi का यूज करते हैं बेटे और MI के यूज कर रहे हैं. आपको पता है एक फोन को मैन्युफैक्चर करने में देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. जैसे कैमरा, जैसे पिक्सल्स उसके, फॉर एग्जांपल इंटरनल स्टोरेज, फॉर एग्जांपल बैटरी, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी कंपोनेंट फॉर दैट. स्क्रीन, दैट टच स्क्रीन, बैटरी, आउटर बॉडी, मॉडल. सो व्हेन दोस डिफरेंट कंपोनेंट्स, जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते हैं और कुछ कंपोनेंट्स Xiaomi खुद मैन्युफैक्चर कर रही है एंड सम कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट दे आर आउटसोर्सिंग इट टू अदर कंपनीज, टू नेपाल, टू बांग्लादेश, टू श्रीलंका और टू चाइना. I will say this type of organizational structure is named as modular organizational structure. तो बेटे आज के लेक्चर में एक तो हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लिखना है और एक हमने आज बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है. बेटे प्लीज आप सभी अपने पेन्स को उठा लें बेटे, अब पेन को रख लें अपने पास क्योंकि लिखना है ना. आइए स्टार्ट करते हैं. टाइप 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कोई खाली नहीं बैठेगा, मैं फिर रिपीट करता हूं. आप मेरे सामने जो बैठे हैं मैं खींच कर थप्पड़ मारूंगा अगर आपने नहीं लिखा. प्लीज लिखिएगा. आप खोलिए रजिस्टर. हाँ आप लिख रहे हैं, हाईलाइटर कहां आपका? चलिए स्टार्ट करेंगे, सब लिखेंगे. आप जो कैमरे में देख रहे हैं वो भी लिखेंगे. टाइप 4 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई एम डूइंग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बेटे ये कॉम्बिनेशन है. It is a combination of functional and divisional structures. फंक्शनल और डिविजनल का मिक्स मैच, मॉकटेल्स. थोड़ा सा जूस, थोड़ा सा सोडा, मॉकटेल है बेटे. इट इज अ मिक्सचर ऑफ
इट इज अ मिक्सचर ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहते हैं दैट इज नेम्ड एज मैट्रिक्स। मजीतो, आप मजीतो पीते हैं बेटा, उसमें सोडा भी होता है, उसमें कोई सिरप भी होता है, उसमें लेमन भी होता है, उसमें पुदीना भी होता है, उसमें देयर आर डिफरेंट, इट इज अ मिक्सचर, मॉकटेल, दैट इज नेम्ड एज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले इसका चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल सी द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। फिर इधर मैंने प्रोडक्ट्स लिख दिए, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, एप्पल कंप्यूटर्स का ले लिया एग्जांपल। अब नाउ दिस पर्सन, this person has to report to this person as well as to this person. This person has to report to this person, product manager as well as department manager. Product manager and department manager. Product manager and department manager. तो प्लीज हैव अ लुक, और सभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को बनाएंगे। डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, उसके नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एंड देन वी कैन हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, मैकबुक, आईफोन, आईपैड, मैकबुक। इट मीन्स डबल रिपोर्टिंग होगी बेटा, आपको लिखना है। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या है, because this is the mixture of that, तो हमें क्या होगा, I will be enjoying the benefits of functional as well as I am enjoying the benefits of divisional। तो first benefit लिखें, I am enjoying the positives of both। when I say both, it means functional and divisional। It encourages teamwork, बेटा सारी टीम मिलके काम कर रही है, whether you are a product manager, whether you are a department manager, all are working for that common goal. They are working together. So a feeling of togetherness, new ideas, new thoughts, new opinions will be there. It encourages exchange of opinions. So negatives are, but एक ही negative है, meetings ज़्यादा होंगी. It will be more time consuming. Decision making will be delayed, So first negative लिखिए, time consuming meetings. Possibility of conflict because there can be an ego. Product manager, iPad will say that this is to be followed. Production manager will say this has to be followed. So there can be a conflict, No unity of command because command is coming to that particular person. ये जो person है, इसको दो कमांड आ रही है बेटे। एक कमांड तो आ रही है यहाँ से प्रोडक्ट मैनेजर से, और एक कमांड आ रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से। So there are two types of commands. You getting a point? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट में आ जाए। लास्ट स्ट्रक्चर आप डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड इट इज नेम्ड एज बाउंड्री लेस। दीज स्ट्रक्चर्स डू नॉट हैव चेन ऑफ कमांड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। बेटे पहली बात, व्हेन आई से बाउंड्री लेस, एज द नेम इंडिकेट्स, आप सब सुन लेंगे ना ध्यान से। बेटे बाउंड्री लेस का मतलब क्या है, आप बताएं। बाउंड्री लेस का लिटरल मीनिंग क्या होगा, आप बताइए। हाँ जी आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री लेस व्हेन देयर इज नो बाउंड्री एज सच। अप टू दिस टाइम जो भी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए, वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, वेदर इट इज फंक्शनल, वेदर इट इज डिविजनल, वेदर इट इज मैट्रिक्स, इन सब में देयर इज अ बाउंड्री लाइन। बट व्हेन देयर इज नो बाउंड्री, दिस होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी, दैट इज नेम्ड एज बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो लिखें, these structures do not have chain of command or departments. The structures have flexibility. बेटे तीन तरह के structures हो सकते हैं, hollow, MCQs आते हैं, प्लीज ध्यान से, लास्ट पॉइंट है लिखना है। hollow structures, hollow organizations, modular organizations and virtual organizations. hollow organizations, virtual organizations and modular organizations। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस हॉलो ऑर्गेनाइजेशंस। बेटे मैंने एग्जांपल दिया आपको हॉलो में, मारुति उद्योग लिमिटेड। आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ HP, डेल कंप्यूटर्स। तो आपको वो एग्जांपल्स अभी लिखने हैं, जस्ट उससे पहले ये लिख लीजिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस स्प्लिट द एक्टिविटीज इनटू टू पार्ट्स, द कोर एक्टिविटीज एंड द नॉन कोर एक्टिविटीज, कोर एंड नॉन कोर। It means these types of organizations split into two parts, core and non-core.
ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स. आउटसोर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? जैसे एक कंपनी यूके में है, दे मैन्युफैक्चर द एक्टिविटी इन चाइना. कुछ वर्क वो चाइना से करा लेते हैं. सम वर्क दे गेट इट डन फ्रॉम इंडिया. सम वर्क दे गेट इट डन फ्रॉम New Zealand, and the core work they do in UK only. So I will say this type of organization is named as hollow organization structure, and there is no boundary as such. और आपको बताइए बेटे, BPOs हमारे दिल्ली में, नोएडा, गुड़गांव में huge BPOs, huge work is there. KPOs, knowledge processing outsourcing, business processing outsourcing, so that work is there. ठीक है जी. तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में मारुति एग्जाम्पल लिखेंगे बेटे. बड़ा ही प्यारा सा मैंने यहां पर आपके लिए प्रिपेयर किया है. एग्जाम्पल ऑफ हॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. मारुति उद्योग लिमिटेड, डेल कंप्यूटर्स, एप्पल कंप्यूटर्स, HP computers. Now they have divided their activities into two parts, core and non-core. When I say core, आप बताइए जी, मारुति उद्योग लिमिटेड, I have taken the example of a car. Now, what are the core activities? Core functions क्या होंगे बेटे एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए? उसका बॉडी, उसका डिजाइन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर. और नॉन कोर क्या होंगे? उसमें क्या बैटरी लगना है, क्या टायर्स लगने हैं, और क्या इलेक्ट्रिक वर्क होना है. मैंने एग्जांपल लिया आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. सो जो ये जो कोर एक्टिविटीज हैं दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय Maruti Udyog themselves, and these non-core will be outsourced. So this is hollow. Next is modular organizations. और before that मैं तो कहूँगा modular से पहले अगर आप virtual देख लें, चलिए कोई बात नहीं, modular देख लेते हैं पहले. Modular organizations, Xiaomi, MI, Oppo, Samsung, बेटे ये सब मोबाइल फोन्स बना रहे हैं. Now, if I see that in these mobile phones, different components are being used and then they are assembled. So there are so many components in a mobile phone. Screen saver है, screen touch screen है, battery है, camera है, internal processor है, memory है, body है, structure है. Now there are some components which are being manufactured by Xiaomi itself, and some components are being outsourced or get it done from others. So this type of structure is named as modular organizational structures. आप सब लिखें प्लीज. आप सबके पास मोबाइल फोन है ना, निकालिए अपना मोबाइल फोन और देखिए इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हुए होंगे. व्हाट आर द मॉडल्स इन दिस. और इसमें से कुछ कंपोनेंट्स Xiaomi खुद मैन्युफैक्चर करती है और कुछ कंपोनेंट्स वो आउटसोर्स कर देते हैं. तो बेटे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? क्या मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. लिखें प्लीज, सभी लिखें और आप भी लिखें. ईच कंपोनेंट इज मेड बाय कंपनी और आउटसोर्स. तो बेटे मैंने Xiaomi और MI का नाम लिखा. डिफरेंट कंपोनेंट्स. एक मोबाइल फोन में वी कैन हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स. बैटरी, स्क्रीन प्रोसेसर, वी कैन हैव चिप, वी कैन हैव बॉडी, वी कैन हैव कैमरा. अलग अलग हो सकते हैं. मैंने तो आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल. So out of these 6, 7, 8, 9, 10 components, some components, important components are being manufactured by Xiaomi itself and some are being outsourced. बेटे इसको बोलते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्यूम किया स्क्रीन, बैटरी, प्रोसेसर कैन बी प्रोड्यूस बाय Xiaomi and chips, body, etc. can be outsourced. So this is a modular organizational structure. लास्ट में आगे जी virtual organizations. बेटे e-commerce, I will say all e-commerce companies will fall under virtual organization because there is one e-commerce platform. Within that platform, so many different small companies are there. Now this big company has entered into a contract with these small companies. So that is a virtual organization. तो आप लिखें एक बार, when organization outsource many of its functions. When organization outsource, Amazon has outsourced many of its functions, and the organization exists as a network of contracts. The organization exists
as a network of contract, then it is named as virtual organization. एग्जाम्पल में लिखेंगे Amazon, एग्जाम्पल में लिखेंगे फ्लिपकार्ट, एग्जाम्पल में लिखेंगे ऑल ई कॉमर्स कंपनीज, एग्जाम्पल में लिखेंगे all Snapdeal. So that is a virtual organization. So in totality I have told you 5 organizations. ठीक है जी. अभी हम क्या करने वाले हैं, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे. आइए जरा पहले एक बार गूगल बाबा से पूछ लेते हैं कि गूगल बाबा, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट बाउंड्री